Hello students, welcome to my class, and today I start our English language class. So today we're gonna start the new chapter 4, a school with a difference. Okay, a school with a difference. Okay students, so please open your book and open the chapter 4, page number 28, a school with a difference, and please write on your diary. Okay, write a note on your diary that today's English language class, chapter 4, a school with a difference. Okay, a school with a difference. Chalo, next. So here the chapter, a school with a difference. A school with a difference means a school that are different types. Okay, एक स्कूल है डिफरेंट टाइप का, जो जैसे नॉर्मल स्कूल होता है वैसा नहीं है. तो चलो देखते हैं कैसा डिफरेंट टाइप है. सो ये किसने लिखा है? ईवी लुकस ने लिखा है 1868 से 1938 तक. 1868 उनका बर्थ ईयर है और डेथ ईयर इज़ 1938. E.V. Lucas was an English writer of essays, biographies, short stories, novels, plays, and poems. In addition to being an editor and a publisher, he was well loved by readers and critics alike for his comic touch. Some of his favorite subjects included the city of London, travel, and cricket. Okay. I had heard a great deal with Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो एक ग्रेट डील था मिसेस बीम स्कूल के साथ मेरा. लास्ट वीक जो मेरा चांस था वहाँ पे जाने के लिए. When I arrived at the school, there was no one in sight except a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage. जब मैं स्कूल पर गया तो वहाँ पे कोई नहीं था सिवाय एक लड़की के जिसकी उम्र शायद 12 ईयर्स होगी और उसकी आँख एक बैंडेज से बंधा हुआ था. She was being laid carefully between the flower beds by a little boy, not more than 8 years old. तो उसके पास एक लड़का था, छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 8 साल होगी. She stopped and evidently asked who it was that had come in. तो वो थम गई और उसने पूछा कि ये कौन है. एंड ही seemed to be describing me to her. तो इसीलिए वो लड़का मुझे डिस्क्राइब कर रहा था उसको, उस लड़की को. Then they passed on. उसके बाद वो चले गए. Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, kindly, and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she was plump in a way that would be comforting to a homesick child. तो जैसा मैंने सोचा था मिस बीम वैसी ही थी. अंडरस्टैंडिंग, मिडिल एज, उनकी हेयर थोड़ी सी ग्रे हो चुकी थी. तो ऐसे था. We talked idly
for a little while, and then I asked her some question as to her teaching methods, which I had heard were simple. तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं पूछा, मतलब राइटर ने पूछा उनको कि आप उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में उनसे पूछा, एंड विच आई हैड हियर्ड वे सिंपल, जो मैंने कुछ सुना था. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग. तो जैसे ही सिंपलेस्ट, जैसे ही मतलब सभी टीचर जैसे सिखाते हैं स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, ऐसे ऐसे होता है, वैसा ही है. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक ड्यूरिंग विच दे हैव to sit still and keep their hands quiet. Practically there are no other lessons at all. So practically उनको lessons नहीं मिलता है अगर वो theory, अगर वो book से पढ़े तो. I have heard so much, मैंने सुना है बहुत कुछ. I said, मैं बोला, about the originality of your system, आपकी जो system है उसकी originality कुछ अलग ही है. Miss Beam smiled, Miss Beam मुस्कुराई. Yes, she said, उन्होंने बोला, हाँ ऐसा ही है. I am coming to that. मैं उसी पर ही आ रही हूँ. The real aim of this school is not so much to instill thought as thoughtfulness, humanity, citizenship. तो मैं सिर्फ मतलब जो बुक में है वही पढ़ो, वही करो, वो नहीं सिखाती हूँ. मैं सिखाती हूँ सब कुछ टच करके, सोच के, बिहेव, फील करके जो कुछ भी सीखा जाता है सब कुछ. दैट इज़ द आइडियल आई हैव ऑलवेज हैड, एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड इनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू. तो मैं सोचती हूँ, मिस भी वही बोल रही है कि मैं वही सोचती हूँ कि अगर हम मतलब औरों की तरह सोचें, उनकी तरह अगर हम बिहेव, मतलब सोच के अगर हम अपना बिहेव करें, फील करें, तो वही प्रैक्टिकल लेसन होता है. और मेरे स्टूडेंट भी अच्छे हैं और उनके पेरेंट्स भी अच्छे, जो मुझे ट्रस्ट करते हैं. तुम खिड़की से बाहर 1 मिनट देख लो, एक बार देखो तो. So I went to the window which overlooked a large garden and playground at the back. मैं खिड़की तक गया, वहाँ पे देखा कि बहुत बड़ी एक गार्डन है, प्लेग्राउंड एट द बैक, उसके पीछे प्लेग्राउंड है. What do you see? मिस बीम आस्क्ड. मिस बीम ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? I see some very beautiful grounds, I said. मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर एक ग्राउंड है. And lot of jolly children, बहुत सारे जॉली बच्चे हैं. But what perplexes me and pains me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes, and now I can see 2 more in the same plight. While there is a girl with a crutch just under the window watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. इसका मतलब है कि हाँ, मैंने देखा एक ग्राउंड है, बहुत जॉली बच्चे भी है कुछ, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई एबिलिटी नहीं है. एक तो जब मैं स्कूल के अंदर आया तो तब मैं देखा कि वहाँ पे एक लड़की है जो आँखों से देख नहीं पाती, और एक लड़की को भी मैं देख रहा हूँ कि वो
देख नहीं पाती, और एक लड़की तो ऐसा है जो खिड़की से बाहर झांक रही है, पर वो इनके साथ खेल नहीं सकती क्योंकि उसकी सिचुएशन थोड़ी सी बैड ही है। मिस बीम laughed. Oh no, she said. She is not lame, really. This is only her lame day. Nor are those others blind. It is only their blind day. I must have looked very much astonished, for she laughed again. There you have an important part of our system in a nutshell, in order to get a real appreciation. तो तभी मिस बीम हंसी और ये बोली कि नहीं नहीं नहीं, वो लड़की लेम नहीं है, मतलब वो पैरों से चल नहीं सकती ऐसा नहीं है, उसका डे लेम डे है, मतलब उस दिन उसको लेम बन के, मतलब पैरों से चल नहीं सकती ऐसा उसको करना है, कि जिनके पैर नहीं होते वो कैसे दिन गुजारते हैं ऐसा फील करने के लिए। और जो आँखों में पट्टी बनी हुई है वो ब्लाइंड नहीं है, उनका डे ब्लाइंड है, क्योंकि उनका अंधा दिन है आज के, वो सारा दिन वो अंधे ही रहे। ऐसे क्या होता है, ऐसे वो अपने सिस्टम को, हमारे सिस्टम को वो समझ पाती है। दैट्स अप्रिशिएशन। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्चून इनटू दिस यंग्स माइंड्स। तो ऐसे उनको पता चलता है बच्चों को कि अगर जिसके पास नहीं होता है वो कैसा फील करता है ना। एंड दिस यंग माइंड्स वी मेक देम पार्टिसिपेंट्स इन मिसफॉर्चून टू। और इस यंग माइंड्स को भी पता चलता है कि जिनके पास सब, किसी के पास सब कुछ नहीं होता है, वो बहुत ब्लेस्ड है कि उनके पास सब कुछ है। In the course of the town, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one maimed day, one dumb day. तो सभी बच्चे एक ना एक दिन उनको ब्लाइंड डे होता है, लेम डे होता है, डीफ डे होता है, मेम डे होता है एंड डम डे होता है। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and it is a point of honor not to peep. The bandage is put on overnight and they wake up blind. तो ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब थोड़ा ही वो बैंडेज करे और सारा दिन रहे, ऐसा नहीं है। पिछले रात को ही वो आँखों में बैंडेज कर लेती है ओवरनाइट, के जब वो सुबह उठे तो अपने आप को अंधा ही पाए कि वो आँखों से कुछ देख नहीं सकता। दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग। तो इसीलिए उनको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है हर टाइम। एंड अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड टू हेल्प देम एंड लीड देम अबाउट। तो इसीलिए और जो बच्चे होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं, सब कुछ बताने के लिए लीड करते हैं उन लोगों को सब कुछ के लिए। इट इज़ एडुकेटिव टू बोथ ऑफ देम। तो इसीलिए दोनों को ही हेल्प मिलती है, जो ब्लाइंड है उसको भी और जो हेल्पर होता है उसको भी, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, यहाँ तक। नेक्स्ट डे वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, नेक्स्ट डे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मार्क कर लो पेज नंबर क्या है, 31, पेज नंबर 31 अपर पैरा तक। नेक्स्ट डे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग। ओके।